आराधना करने से पहले कुछ वचनों के द्वारा हम प्रोत्साहन पाएंगे। I just want to share one thing. So even I was rebuked when I was playing harmonium when I was very small. और मैं जब छोटा था तब मैं हारमोनियम बजा रहा था, तब मुझे भी डांटा गया है। I was asked to move away from my instruments. और मुझे ऐसा भी बोला गया, जब हारमोनियम बजा रहा था तभी उठकर बाजू में हट जा बोला So गया। it's with love I shared with little Timothy. और तिमोथी को भी इसी प्रकार प्रेम के साथ मैंने वो काम किया। May we pray that he will become a vessel in the future. और आने वाले दिनों में वो भी एक अच्छा उपयोगी पात्र बने। So let's turn our Bibles to Psalm chapter 66. भजन संहिता 66, स्तोत्र संहिता 66 verse 20. और इसका 20 वचन। भजन संहिता 66 और उसका 20 वचन। I'll try my best to maintain the time आवाज बढ़ा दो। as much as possible. I'll try my best to maintain the time and close this as soon as possible. Yes. It's now 10:13, so I've been given 30 minutes, so let's try to close it off by then. Okay, Psalms chapter 66, verse 20. भजन संहिता इसका 66 अध्याय और 20 वचन। Let's read it all together. सब मिलकर पढ़ लेते हैं। Blessed be God which धन्य hath है not परमेश्वर turned जिसने away my न तो prayer, मेरी nor प्रार्थना his अनसुनी की mercy from और me. न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। Let's read it all together with our hearts. सब लोग मिलकर एक बार फिर से पढ़ेंगे। धन्य Blessed है be God परमेश्वर which जिसने hath न not तो मेरी turned away प्रार्थना my अनसुनी prayer, की nor और his न mercy तो from me. न मुझसे अपनी करुणा दूर की Let's कर look दी to है। the Lord in prayer. प्रार्थना में जाएंगे। Loving Lord, loving Father, once again thank you and praise you, Lord, for the time that you given to us, and worthy we are with unworthy lips. But thank you, Lord, for the way that you are about to sanctify us and sanctifying us, Lord. And thank you, Lord, for the mercy and long suffering that you have been showing and bestowing upon us. Thank you, Lord, for the way that you have arranged in this place and, Lord, brought us into thy presence so that, Lord, we may also worship thee sincerely and take part in thy table, examining ourselves. Oh Lord, help us to know who you are so that, Lord, we may do everything in the light of thy word. Lord, in the utterance as well, Lord, myself and even brother as well, Lord, take control of our thoughts and utterances as well. This small prayer, knowing that you have heard my prayer, in Jesus' precious name I pray. Amen. Let's read it again. Psalms chapter 66, verse 20. भजन संहिता 66 अध्याय और 20 वचन फिर से एक बार मिलकर पढ़ेंगे। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। So this we have seen the last time when I shared the worship message as well. और यही बातों को हमने पिछले वचनों में हमने देखा था। As I was meditating, this is the portion that God gave me. और मैं जब मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे इस भाग में से इस वचन को दिया। He has not turned away from our prayers. और मेरी प्रार्थनाओं को उसने अनसुनी नहीं की। मेरे माझ्या प्रार्थना ना त्यांनी न ऐकल्यासारखं केलेलं नाहीये। Nor his mercy from me. और ना तो उसकी करुणा मुझसे उसने दूर कर दी है। So we will see 3 instances how God has intervened himself in listening and hearing to the word of God and acting on the prayer of the believers. और हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार सक्रिय है कि जैसे कि वो हमारी प्रार्थना सुने, हमारे शब्दों को सुने और वो हमें इस प्रकार हमें उत्तर दे। Before that we will read also verses from 13 to 16. और 13 से लेकर 16 ये भी वचन हम पढ़ लेंगे। 13 मैं पढ़ता हूँ, 15 आप पढ़िए। I will go into thy house. मैं होमबलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा which my lips have uttered and my mouth hath spoken when I was in trouble. 15 वचन। मैं तुझे मोटे पशुओं की होमबलि, मेढ़ों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। Come and hear, all ye that fear God, and I will declare what he hath done for my soul. We could see the desire of this psalmist writing the psalm. यहाँ पर भजन करता इसके हृदय यानी इसके बोझ को या तो उसके इच्छाओं को, अभिलाषाओं को देख सकते हैं। In verse 5 he says, come and see.
5 वचन में कहता है कि आओ आकर देखो, See the works of God. परमेश्वर के कामों को देखो। And in verse 16 he will say, come and hear. और 16 वचन में कहता है कि उसको आकर सुनो। I will start uttering my worship and you will be encouraged. और वो भजनकर्ता कहता है कि मैं मेरे शब्दों के द्वारा उसके स्तुति और आराधना को करूंगा और तुम सुनोगे। Because my God is a living God. He has eyes, he has ears, he has mouth. क्योंकि मेरा परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है, उसके पास उसका सुनने के लिए कान और बोलने के लिए मुंह है। He has heard my plea, he has heard my cause and he has answered my prayers. और उसने मेरी परेशानी को उसने सुन लिया और उसने मेरे प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया। And he has extended his mercy toward me. और उसने अपने करुणा को या उसने दया को मुझ पर उसने निछावर किया है। He is not saying that I am a perfect being and you are useless people. वह ऐसा नहीं कहना चाह रहा है कि मैं बहुत ही परिपूर्ण हूँ और तुम सुनने वाले तुम बहुत ही निकम्मे हो। No, he says, let's join together, let's worship the Lord. वो भजनकर्ता कहता है कि मेरे साथ में तुम भी आराधना करो। In verse 1 it says, make a joyful noise unto God, all ye lands. कितना? Verse 1. हाँ, एक वचन में लिखा है कि वो कहता है कि 66 verse 1. हाँ सॉरी हाँ, ये कहता है हे सारी पृथ्वी के लोगों परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। But I want to share my joy with you. मगर वो भजनकर्ता कहता है मेरे आनंद को तुम्हारे साथ में बांटना चाहता हूँ। Because he has heard my prayer. इस कारण क्या है? क्योंकि उसने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। Can we together worship the Lord in that perspective? क्या इस प्रकार उस अनुभव में हम भी आराधना करें? So as I said, let's three instances. 3 बातों के ऊपर मनन करेंगे। One is the people of Israel. पहला एक इजराइल के लोग, when they prayed to God, वो जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, how God intervened. और कैसे परमेश्वर उनके जीवन में कार्य किया। Let's turn our Bibles to Genesis chapter 50. और उत्पत्ति 15 अध्याय verse 24. और उसका 24 वचन। उत्पत्ति 15 अध्याय 24 वचन। Let's read together. सब मिलकर पढ़ेंगे। उत्पत्ति 15 अध्याय Genesis chapter 50 verse 24. क्षमा करें, उत्पत्ति 50 अध्याय, उत्पत्ति 50 अध्याय और 15 वचन। 24. क्षमा करें, उत्पत्ति 50 अध्याय 24 वचन। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी स्तुति लेगा और तुम्हारे इस देश से निकाल कर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने के उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई है। We know that a person called Joseph. हम जानते हैं कि यूसुफ के बारे में हम जानते हैं। We will not be meditating on his life. मगर उसके जीवन पर हम मनन नहीं करेंगे। But we will see an example from his life and from the people of Israel. हम यूसुफ के जीवन के उदाहरण को और इजराइल के लोगों के जीवन के बारे में We know देखेंगे। how God has used Joseph to become a great prime minister in Egypt. और हम देखते हैं कि कैसे यूसुफ को परमेश्वर ने वहां का प्रधानमंत्री बनने के लिए इस्तेमाल किया। When he was alive, he knows that God will surely visit them. जब यूसुफ जिंदा था तब उसको मालूम था कि परमेश्वर मेरे लोगों की भेंट लेगा। He don't know the timeline probably. मगर उसको वह समय नहीं मालूम था। He must have known from his patriarch fathers, because it is already revealed to Abraham, Isaac, and Jacob too probably. Because that information got extended. मगर यूसुफ के परदादा अब्राहम, इसहाक और याकूब को ये बात परमेश्वर ने पहले से बताया था। And he know this fact that surely God will visit you. और उस समय वो जानता था, इसीलिए वो कहता है ये सच है कि परमेश्वर तुम्हारी भेंट लेगा। If God has shown mercy to the people of Nineveh, God will also show the mercy on people of Israel. यदि परमेश्वर ने निनिवे के लोगों के ऊपर ऐसा वो दया दिखा सकता है तो वो इजराइल के ऊपर भी दया दिखाएगा। Why are we now thinking about people of Nineveh? मैं निनिवे के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? Because God already promised that He will be destroying that city.
क्योंकि परमेश्वर ने निनवे के विषय में बताया था कि मैं उस नगर का नाश करूंगा, but he extended his mercy. मगर उसने अपनी दया, उसकी करुणा को It's the उसने, same God who promised to Abraham, saying that for 400 years people will go through suffering. अब्राहम को परमेश्वर ने पहले से बताया था कि 400 साल पहले ही बताया था कि देख अब्राहम, तेरे लोग ऐसे बंधुआई में जाएंगे। We will not be reading that portion. You can see Genesis chapter 15 verse 13. और उत्पत्ति 15 का 13 वचन ये इसमें लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। But eventually, soon after Joseph has uttered these words that surely God will visit you, people should have acted to leave Egypt as soon as possible. यूसुफ जब अपने लोगों से कहा, देखो परमेश्वर तुम्हारी बहुत जल्दी भेंट लेगा, यहाँ से तुमको निकाल देगा, मगर ये सुनने के बाद लोग ऐसा करना चाहिए था कि वहां से निकल जाना चाहिए था। Yes, to avoid 400 years of bondage. अरे अगले 400 साल क्यों रुकना है, तो अभी मैं निकल जाऊंगा, बल्कि वो सोच सकते थे। But what did the people of Israel do? मगर वहां के इजराइल लोगों ने क्या किया, They started indulging themselves in Egypt. वो मिस्र देश में रहने की, वहीं पे बसने की कोशिश की। And there so came a time when a new king has taken the throne and he did not knew who Joseph यूसुफ was. के बाद ऐसा एक राजा आया कि वो राजा यूसुफ को ने जानता नहीं था। And Joseph is not a normal being. He did rescued the people of Egypt and the whole world as well from famine. यूसुफ के बारे में अगर देखेंगे, ना केवल यूसुफ ने अपने लोगों की उसने रक्षा की, उसको बचाया, मगर वो अपने लोगों के साथ साथ वो मिस्र और संसार के कई लोगों को उसने बचाया है। But the people of Israel, the sons of Jacob, should have heeded Joseph immediately. मगर They should have listened to him and start journeying. मगर यूसुफ ने जब उनको बताया था कि तो बहुत जल्दी मेरा परमेश्वर तुम्हारी भेंट लेगा, ये सुनते ही वो बहुत जल्द इसको सुनकर वहां से निकल जाना And he चाहिए था। didn't say this just one time. In 25th verse as well, we see in Genesis chapter 50 verse 25, he says it again. Surely God will visit you. और वो कहता है कि निश्चय तुम्हारी परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हारी भेंट लेगा। And he will say, I will die and my bones you have to take and carry away. वो ये भी कहता है, देखो मैं तो मरने पर हूँ, मैं मर जाऊंगा, मगर मेरी हड्डियां जब तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें यहाँ से ले जाएगा, तब मेरी हड्डियों को भी लेकर जाना। Didn't Joseph die in Egypt? He यूसुफ मिस्र में मर गया। मर गया था ना? Yes, he died in Egypt. और वो यूसुफ अपने जीवन का अंत यूसुफ का जो मिस्र में ही हो गया। Soon after his death, they should have carried his bones and carry away. और ऐसा होना चाहिए था कि यूसुफ मरने के बाद उसके बातों को याद करते हुए उसके हड्डियों को लेकर तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए था। We do not know the real reasons why people lingered in Egypt. मगर मिस्र देश में रहने वाले इजरायलियों को खुद को नहीं पता था कि हम क्यों इतने साल वहां पर रह रहे हैं। The people who were on top of the list, little by little they came down to nothing and they became useless. और हम देखते हैं कि वो ऐसे ऊंचे स्तर पर रहने वाले इजरायली लोग जो यूसुफ के बाद के वाले लोग थे, वो धीरे धीरे कर निचले स्थान में आते गए। This is because of sin. वही एक प्रकार का वो पाप है। Because of not obeying the words of our patriarchs, we go away from the direction of God's plan. और इसी प्रकार प्रियो, यदि हम हमारे बाप दादाओं का कहना नहीं मानेंगे, तो ये बात सच है कि हम बहुत जल्दी हम ऐसे रास्ते से हम भटक जाएंगे। And God himself intervened to rescue the people of Israel. फिर ऐसे समय में परमेश्वर स्वयं मध्यस्थी कर इजरायलियों को वहां से छुड़ाने की उसने कोशिश की। He already promised 400 years. मगर यह भी बात सच है कि परमेश्वर ने कहा था पहले से 400 साल के बाद मैं उनका भेंट लूंगा। But actual years of people of Israel moving out of Egypt is 430 years. मगर 400 साल नहीं प्रियो, बल्कि 450 साल लगा, 430 साल लगा। 30 years bonus. 30 साल ज्यादा हो गए। Bonus. Because of sin, the wages of sin will bind us in that captivity. पाप की मजदूरी तो इस प्रकार का बोझ बन गया, और 400 साल कहा था, 30 साल एक्स्ट्रा बढ़ गए। इस प्रकार वो वहां पर बंदी यानी दास बंदी गृह में दासत्व में आ गए। And in Deuteronomy, if you read a beautiful verse is there, and even in Exodus, how long will you not heed my
commandments and obey my voice. और He will say. अनुवाद की किताब में परमेश्वर कहता है कि कब तक तुम मेरे वचन को सुनने के लिए अपने मन कठिन करोगे? I am ready to intervene. मैं तुम्हारे लिए बिचवाई करने के लिए तैयार हूँ, I am ready to listen to your prayer. मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार But हूँ, why are you not heeding? मगर तुम क्यों नहीं सुनते? However, the people of Israel started praying. मगर एक समय आया, इजराइल के लोगों ने रोना शुरू किया, परमेश्वर से दुहाई देना शुरू किया। Exodus chapter 2 verse 24 and 25. We'll not look into it. निर्गमन की किताब 2 अध्याय 22 और 22 वचन। We see God heard their groanings. और कैसे परमेश्वर ने उनके दुहाई को सुनी। God remembered his covenant which he gave to Abraham. 2 verse 24 and 25. और निर्गमन की किताब 2 अध्याय उसका 24 और 25 वचन। Let's read it. आइए मिलकर पढ़ लेते हैं। And God heard परमेश्वर ने their groaning, उनका and God कराहना remembered his सुनकर covenant अपनी वाचा with Abraham, को with जो उसने Isaac, अब्राहम, and with इसहाक Jacob. और याकूब के साथ And बांधी God थी, looked स्मरण किया, upon the और children of परमेश्वर ने Israel, इजराइलियों and पर God दृष्टि respected. करके उन पर चित्त लगाया। This is how God intervened in the lives of the people of Israel. इसी प्रकार परमेश्वर इजराइलियों के जीवन में मध्यस्थी कर रहा था। And how long have you been in sin? And when you started praying, did God answer you? And is this the reason why you have come into the house of God? And you will say, I will worship the Lord with all my joy. और इसी प्रकार हम भी इतना समय बिता रहे थे पाप में, मगर एक समय आया, मगर प्रभु ने हमारी दुहाई को सुनी और हमें उसने छुड़ा लिया। इसी के कारण आज यहाँ पर आराधना करने के लिए इकट्ठा हो गए। If that is the reason, praise God. अगर यही कारण है आपका भी, तो आराधना करें। Because God doesn't matter how long we have lived in past, He is a God of present. मगर एक याद रखिए, परमेश्वर ये नहीं देखता कि हम कितना समय पाप में बिताए, मगर ये देखता है कि आज हम प्रभु की उपस्थिति में In हैं। Isaiah chapter 59, I think so, in verse 2, my hands are extended toward you always. और यशायाह 59 और 2 वचन में, 2 वचन के प्रकार में परमेश्वर कहता है, मेरा हाथ सदैव तुम्हारे सामने फैला है, And I'm ready to rescue you. और मैं सदैव तुम्हें बचाने के लिए मैं तैयार And हूँ, I'm ready to forgive you. मैं क्षमा करने के लिए And तैयार I हूँ। did forgive you. मैं पहले And I did forgive you. और मैं क्षमा कर चुका हूँ। And let's now look into a second topic. एक दूसरा और विचार को देखते हैं। Daniel दानियल की किताब chapter 9, 9 अध्याय verse 2 through 19. We will not read the whole verses, but I'll just give you the gist of it. अधिकांश लोग लिखने की कोशिश करें, बच्चे कंपलसरी बुक लेकर आना है, नोटबुक पेन लेकर आना है, कंपलसरी। मैं किसी का भी बुक चेक करूंगा। Daniel chapter 9. दानियल की किताब 9 अध्याय। After you go home, please read this. It is a घर very, जाओगे, घर जाने के बाद जरूर इस वचन को पढ़ लेना। it's a beautiful book, और ये बहुत ही सुंदर बुक, सुंदर किताब है। and we can see how Daniel, who was interceding on behalf of the children of Israel. और देखिए दानियल किस प्रकार इजराइल के प्रति मध्यस्थी कर कर प्रार्थना कर In रहा the है। first instance, we have seen how the people of Israel themselves have prayed to God and how पहली God बात में हमने intervened. क्या देखा, कैसे इजराइल लोगों ने परमेश्वर के पास प्रार्थना की। Daniel's prayer. अब दानियल की प्रार्थना, Let's read chapter 9 verse 2. और दानियल की किताब 9 अध्याय 2 वचन मिलकर पढ़ेंगे। In the first year of उसके his राज्य के reign, पहले I, वर्ष Daniel, understood the में मुझ books, दानियल ने the शास्त्र numbers के of the द्वारा years. समझ Therefore, लिया कि the word of यरूशलेम the की Lord उजड़ came to हुई Jeremiah, the prophet, दशा that he यहोवा would के उस accomplish वचन के 70 अनुसार जो years in the यिर्मयाह desolation नबी के of पास Jerusalem. पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। In the captivity of Egypt was the first instance. और जब लोग बंदवाई में चले गए, उसके बाद में ये पहली बात है। And God rescued them from Egypt to come into the promised land. अब पहली बार हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इजराइल लोगों को मिस्र से छुड़ाकर उस अभिवचन के देश में लेकर आए। God's heart and desire was that the people of Israel would heed His commandments. परमेश्वर की इच्छा थी कि इजराइल लोगों के द्वारा यही इच्छा थी कि वो उसके आज्ञाओं को पालन करे। But eventually we see the decline of their spiritual life. मगर and हम faith. देखते हैं कि उनके आध्यात्मिक जीवन में इन्हीं बातों के विरोध में वो चले। What happened? उनके साथ क्या हुआ? The result of their disobedience led them again to the captivity
of Babylon. जिस समय उन्होंने अवज्ञाकारी किया उस समय उसके बाद वो फिर से बबीलोन के बंदवाई में चले गए। But God extended His grace and said 70 years is enough. 70 years is enough. और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को बढ़ा दिया और बढ़ाकर कहा अब इनके लिए केवल 70 साल ठीक है। This we see the love of God. यही एक प्रेम है प्रियो। How long you and me have disobeyed God and His commandments and His statutes, and then we again raise our hands, Lord, please forgive us, and He will rescue us, and He will say, yes, beta, I am ready to. कितनी बार प्रियो हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं, कठिन हो जाते हैं, दूर रहते हैं और उसके बाद तुरंत हम हाथ उठाकर कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर, और वो तुरंत हमें क्षमा कर लेता है। And in the same perspective, when Paul says, will you be sinning against God all the time, every time, again and again? पौलुस यही तो कहता है कि क्या बार बार हर बार क्या तुम पाप ही करते He रहोगे? will say this, certainly not. हम ऐसा कहे कि नहीं। He will say that, certainly not. हाँ, पौलुस कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। Of course, grace is there, ये सच है कि अनुग्रह है, but there is consequences as well that you have to मगर याद रखिए कि पाप का परिणाम है। face. But still, God extends His. मगर फिर भी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को बढ़ा दिया। And we see the same thing happening in the people of Israel under the captivity of और Babylon. यही बातों को हम देखते हैं जब लोग बंदवाई में फिर से चले गए तो परमेश्वर ने इस प्रकार का काम किया। And this is the very lengthy prayer of Daniel from दानियल का ये बहुत बड़ा प्रार्थना है, verse 3 to 19. और 3 से लेकर 19 वचन तक। But let's just read verse 19 केवल 19 वचन पढ़ेंगे, together. सब मिलकर पढ़ते हैं। O Lord, hear. O Lord, forgive. हे प्रभु O Lord, सुन ले, hearken हे प्रभु and do. पाप क्षमा कर, हे Defer प्रभु not for ध्यान thine देकर own sake. जो O my करना है God, for thy उसके city कारण and thy विलंब people न are कर। called हे by thy name. परमेश्वर तेरा नगर तेरी प्रजा तेरी है कहलाती है, इसलिए अपने नाम की निमित्त ऐसा ही कर। God intervened again here. और यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर फिर से एक बार मध्यस्थी किया है। Who was the fourth king और चौथा राजा कौन है? under Daniel did support 4 kings. Who was the fourth king? दानियल के समय में 4 राजा होकर चले गए। 14 राजा कौन है? Cyrus. Yeah. So his name is Cyrus. हिंदी में क्या बोलते हैं साइरस को? कोरेश राजा। हाँ, I think so. In Telugu we call it Koresh. Yeah. So it's through his prophecies in Isaiah, it is already revealed that. बैठने के लिए जगह है क्या? क्या नाम इसका? थोड़ा जगह बनाकर रखिए, अगर कोई है तो बच्चों को आगे भेजिए, छोटे बच्चों को आगे भेजिए। रुदा आगे आओ। हाँ चलो। In the form of Cyrus, God rescues the people of Israel. Yes. In the form of Cyrus. और परमेश्वर कोरेश राजा के द्वारा इजराइल लोगों को बचाने के विषय में उसने योजना बनाई। And he started delivering the people of Israel from the captivity of Babylon to go back again to the promised land. और परमेश्वर ने इस प्रकार का कार्य किया कि वो इजराइल लोग फिर से बेबीलोन के उस बंदवाई से छुटकर वो अपने देश चले जाएं। This is how the Lord will answer the people of his saints. और हम देखते हैं इस प्रकार परमेश्वर Prayers of his saints. और हम देखते हैं कि इस प्रकार परमेश्वर अपनी प्रजा की प्रार्थना के प्रति इस प्रकार उसके हाथों को बनाए रखा। Yeah, let's see the third instance. तीसरी बात, It's Christ himself who is interceding on behalf of us. अब प्रभु यीशु मसीह वह स्वयं हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। Acts chapter 2 verse 38. प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय और 38 वचन। If anyone finds it, please read it aloud. प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 38 वचन। Let's read it. And Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Same? Yes. आइए प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 38 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ
मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। The people of Israel have been praying ever since to get the redemption. अब यहाँ पर भी हम देखते हैं प्रियो, कैसे इजराइल के लोग अपने पापों के छुटकारे के बारे में वो सोच रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, And it took so long to get their prayer answered. और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर जवाब मिलने के लिए बहुत समय लगा। In Daniel also we see that it took 70 years for their redemption. दानियल ने प्रार्थना की, मगर 70 साल लगा उनको बंधुआई से छूटने के लिए, For them to be redeemed from the bondage of Babylon. और इस प्रकार बाबिलोन से वो छुटकारा पाकर आ सके। But we see after the New Testament there is a new revelation altogether. मगर नए नियम में एक नए प्रकार का प्रकाश है। Instant forgiveness of sins. यहाँ पर कैसा है, तुरंत ही पापों की क्षमा मिलती है। You pray, you ask the Lord for his forgiveness and you will be rescued from sin. और जब आप प्रार्थना करते हैं तो तुरंत ही प्रभु प्रार्थना सुनकर आपको उस पापों से छुटकारा देता है। That is what the people of Israel started asking Peter, what should we do? और इसी के कारण तो पतरस को लोग पूछ रहे कि हम क्या करें। How long it will be, because we have crucified the Holy One. If you are saying he is the Holy One, we have crucified him. अब पतरस को कह रहे कि तू कहता है कि वो प्रभु यीशु मसीह पवित्र था जिसको हमने क्रूस पर चढ़ाया है, तो अभी हम क्या करें? How long it will take for us to redeem ourselves again? तो वो कहना चाह रहे थे कि कितना समय लगेगा यदि हम कुछ करने से कि हमको इसमें से छुटकारा Because मिले। they got used with this captivity always. क्योंकि इजराइल लोग हमेशा बंधुआई में पाए गए, And that must be the reason why they started asking, what should we do? इसी के कारण इजराइल लोग पूछ रहे वहां पर पतरस को, अब हम क्या करें? But Peter said, मगर पतरस ने कहा, repent and be baptized. पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, And in the name of Lord Jesus Christ, you will have the remission of sins. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी। This is the blessedness of you and me as well. और इसी प्रकार का जो आशीष आपको और हमको मिली है। When we opened our hearts, God rescued us from the bondage of sin. और जब हम हमारे हृदय को हमने खोल दिया तो परमेश्वर ने, प्रभु ने हमें उस पाप के बंधन से हमको छुड़ा दिया। And he has granted the Holy Spirit, as Peter says in chapter 2 verse 38. He says, और 2:38 के अनुसार जब वो पश्चाताप कर उसको हृदय में स्वीकार किए तो तुरंत पवित्र आत्मा हमें दान दिया गया। exactly, receiving the gift of the Holy Ghost. और वो पवित्र आत्मा का दान दिया गया And है। that Holy Ghost is within us. और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसा रहता है। And that purity should be in us. और वो ब्यूटी, Purity. वो पवित्रता हमारे अंदर रहती है। And the more we are going astray, the Lord has kept on praying for us, praying for us, praying for us. और जैसे कि हम उससे दूर चले जाते हैं, इसलिए प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करते You रहता can है, ask बिचवाई me, करता है। how can you prove this? वो कैसे करता है? Romans रोमियो की chapter पत्री 8. रोमियो की पत्री 8 अध्याय, Just 5 more minutes and we'll be closing. 5 मिनट और फिर आगे बढ़ेंगे। 5 Yes. रोमियो की पत्री 5 अध्याय, Chapter 8 verse 26. रोमियो की पत्री 8 अध्याय 26 वचन मिलकर पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 26 वचन, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसा आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता When we are है। going astray, who is praying on our behalf? अब देखिए, हम परमेश्वर से दूर, प्रभु से दूर चले जाते हैं तो हमारे लिए बिचवाई कर It is the Holy कौन Ghost. बिहाई करता है? It is the Holy Ghost. पवित्र आत्मा बिचवाई करता है। And where are we? हम कहाँ पर है? On earth. हम पृथ्वी पर है। And who is in heaven? अब पवित्र आत्मा कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। अब स्वर्ग में कौन है? Verse 34. और उसका 34 वचन मिलकर पढ़ते हैं। 34 वचन, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। Nivedan, intercession. हमारे लिए बिछवाई करता है। In earth, to rescue us,
The unuttered words of the Spirit have been uttering ever since. We cannot understand what those utterances are, but He kept on praying for us. जो बातें हम प्रार्थना नहीं कर सकते, जो बातें हम बोल नहीं सकते, वो बातें पवित्र आत्मा कराते कराते हमारे लिए बिछवाई करता है प्रियो। Is this not mercy what the psalmist says? क्या भजन करता जैसा कहता है, क्या ये परमेश्वर की दया नहीं है? In heaven, the other person is heeding to the Holy Ghost. Here on earth, that's the beauty. I didn't get it. We are on earth, the Holy Ghost is granted to us as a gift, and when we are going astray, He has been praying for us. And through His prayers, the Lord, who is sitting on the right side of the Father, is also interceding on our behalf. He is listening to that prayer. और What a beauty. यही बात है प्रियो कि जब हम पृथ्वी पर है तो प्रभु ने हमें उसका आत्मा दिया है, और केवल उसका आत्मा दिया है इतना ही नहीं, बल्कि हम उससे जब दूर चले जाते हैं तो हमारे लिए वो बिछवाई करता है। वो उससे बिछवाई करता है जो सिंहासन, पिता के सिंहासन के दाहिनी ओर वो बैठा है। The psalmist says in chapter 66 verse 20, it is because of my prayer God has heard my prayer. इसीलिए भजन करता कहता है, भजन संहिता 66 अध्याय और 20 वचन में, मेरी प्रार्थना को उसने अनसुनी नहीं की। And I will offer bullocks and rams and whatever I can to show my sacrifice to God. इसलिए वो कहता Oblation है, to God. और इसीलिए कहता है कि मैं परमेश्वर के प्रति वो आराधना, वो धन्यवाद, वो मैं मेरे अर्पणों के द्वारा मैं दिखाऊंगा। But as New Testament believers, you and मगर- I should say differently. मगर नए नियम के विश्वासी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम कुछ बैलों की और बकरों की हम अर्पण देकर आराधना करें। We have to say, Lord, I didn't know how to pray. प्रभु मुझे नहीं पता कैसे प्रार्थना करनी I है, didn't know how to love you, मुझे नहीं पता कैसे मुझे तुझे प्रेम करना है, but you remembered me. मगर तू मुझे याद करता है। You have heard my prayers. तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है, You have heard the prayers of the Holy Ghost gift that you have given to me. और तूने उस पवित्र आत्मा की प्रार्थना को सुना जो मुझे तूने उस आत्मा को दिया Right है। now also you are still interceding on our behalf. और आज भी प्रभु तू मेरे लिए बिछवाई कर रहा है। So Lord, I will praise you. इसी के कारण मैं तुझे धन्यवाद दूंगा, I will thank thee. मैं तुझे धन्यवाद करूंगा। Oh, the people of all the lands, let's joyfully praise the Lord, हे पृथ्वी के सब लोगों, मेरे साथ यहोवा का जय जयकार करो, because He has done wonderful things in my life. क्योंकि उसने मेरे जीवन में अद्भुत काम किए How He हैं, has rescued my soul and brought into life everlasting. और कैसे मेरे जीवन को बचाकर वो उसने जीवन में जी लेकर आया है। Let's read that verse and then we'll enter into worship. Psalms chapter 66, भजन संहिता 66, Psalm verse 20. 66, भजन संहिता 66 और उसका 20 वचन। Blessed be God, Psalm which hath, 66 verses 20, सब मिलकर पढ़ेंगे। हाँ, blessed be God, धन्य है which hath परमेश्वर जिसने not turned ना तो away मेरी my प्रार्थना prayer, अनसुनी की nor और ना his मुझसे mercy अपनी from करुणा दूर की। Just a quick recap. The first instance we have seen the people of Israel. पहली बात हमने इजराइल के लोगों को देखा, 430 years they were bound in sin and captivity. और 450 साल 430 साल बंधुआई में थे। God intervened and answered their prayers. परमेश्वर ने उनके लिए बिछवाई कर कर उनकी प्रार्थना को सुना। The second instance we have seen Daniel's prayer. दूसरी बात को हमने देखा दानियल की प्रार्थना। 70 years of captivity in Babylon. 70 साल की वो बंधुआई थी बाबिलोन के अंदर। In the New Testament, as believers, और we नए see नियम के ourselves bound with sin. और नए नियम के जो हम विश्वासी, हम भी उस पाप के बंधुआई में पड़े थे। It's not someone else who is praying for us. It might be someone else who is praying for us, but more than that, Spirit of God Himself is. पता नहीं interceding. हमारे लिए कोई ना कोई प्रार्थना किया होगा, मगर सबसे बड़ी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके लिए और मेरे लिए बिछवाई करता रहा। May we not worship the Lord with that thoughts. इस आराधना के इस विचारों को लेकर हम उसकी आराधना करें। May the Lord guide us in worship. प्रभु इस आराधना को स्वीकार करें। सब खड़े होंगे।